Good morning students. Today we are going to study about water and heavy water, their structure, physical and chemical property. Water, we know that water is essential for all forms of life. हमारी लाइफ के लिए वाटर सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एंड वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फेसेस. That is solid, liquid, as well as in gaseous phase. And what is the structure of water? Water की structure हम fourth chapter chemical bonding में भी study कर चुके हैं. Now firstly calculate electron pair. In case of water, central element is oxygen. We know that oxygen carries 6 valence electron plus 2 monovalent hydrogen. Formula to calculate electron pair is half into number of valence electron of central metal plus total number of monovalent element around the central atom. यहाँ पे 8 by 2 4 total 4 electron pair है. Out of 4 electron pair, lone pair 2 and lone pair also 2. So corresponding to 4 electron pair, hybridization of water is sp3. And for 4 electron pair, geometry of water should be tetrahedral. ठीक है, tetrahedral geometry में हम यहाँ पे 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहे हो ऑक्सीजन एंड देयर आर 2 lone pair present over oxygen. So because of the presence of lone pair, geometry get distorted and its shape become bend shape or V shape. Hybridization in case of water is sp3. Now if we check whether water is a polar covalent compound and non-polar covalent compound, we know that out of hydrogen and oxygen, hydrogen is more electropositive as comparison to oxygen. So there is charge separation where hydrogen being electropositive carry delta positive charge and oxygen carry -2 delta negative charge. तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम डेल्टा पॉजिटिव टू डेल्टा नेगेटिव. डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. एंड आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड लोन पेयर हमेशा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करता है. तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स लोन पेयर. तो यहाँ पे जो नेट डायरेक्शन है, ओवरऑल डायरेक्शन जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में है डाइपोल मोमेंट का. तो वाटर की डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0. सो वी कैन से दैट वाटर इज अ पोलर कंपाउंड. इज इट क्लियर? नाउ वी नो दैट वाटर मॉलिक्यूल कंटेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन एलिमेंट. ठीक है, हाइड्रोजन भी और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. एंड फॉर hydrogen bonding we require hydrogen and in another element there should be electronegative element. water में दोनों ही कंडीशन है तो water always give intermolecular hydrogen bonding. ठीक है, water के केस में intermolecular hydrogen bonding present होगी and because of intermolecular hydrogen bonding वाटर का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने जो ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के कंपैरिजन में हाई होगा. वाटर इज बेसिकली हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के जो ग्रुप के दूसरे एलिमेंट है दैट इज सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनेंगे विद हाइड्रोजन, ये H2O, H2S, H2SC, H2PE. अब जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी. तो हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SC, H2PE they are not able to give intermolecular hydrogen bonding. But water may because of the presence of intermolecular hydrogen bonding. Water has
maximum melting point and boiling point out of all the members of its group। 16 के जो दूसरे एलिमेंट के हाइड्राइड्स के कंपैरिजन में वाटर का मैक्सिमम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच अराइजेस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट ice floats over surface of water, or while ice has lower density than water, and next water shows maximum density at 4 डिग्री सेल्सियस और 277 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे जब हम वाटर की H2O की लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में शेप देखेंगे तो वो शेप डिफरेंट आएगी। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट शेप आइस फ्लोट ओवर सरफेस ऑफ वाटर, ice has lower density than water, and why water shows maximum density at 4 degrees Celsius or 277 Kelvin temperature. And the answer of all these questions are explained only on the basis of structure of H2O in liquid phase or solid phase. So at 0 degree Celsius or 273 Kelvin temperature, when water molecule come close together, then they give a case-like structure. Case-like structure में 4 water molecule come close together and form a hydrogen bonding। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर अपीयर होगी दैट इज केस-लाइक स्ट्रक्चर। एंड इन केस-लाइक स्ट्रक्चर देयर इज मैक्सिमम फ्री वॉल्यूम प्रेजेंट इन बिटवीन 4 water molecules। And we know that at 0 degree Celsius temperature water present in ice form, that is in solid form. Now when we increase the temperature from 0 degree to 4 degree Celsius temperature, and at 4 degree Celsius temperature the shape is appear like this। ठीक है, यहाँ पे जो शेप होगी जस्ट लाइक टेट्राहेड्रल शेप इन विच फ्री स्पेस इज लेस। अब जब हम इसको फर्दर ग्रेटर देन 4 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे। एट हायर टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीटली ब्रेक होगी। नाउ देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग above 4 degree Celsius temperature. So we can say that minimum volume present in between water molecules is at 4 degree Celsius temperature. 4 degree Celsius पे volume minimum है, volume minimum है, so we can say that at 4 degree Celsius or 277 Kelvin temperature density of water is maximum. Below 4 degree Celsius भी case-like structure में appear कर रहा है। Free volume is very high and above 4 degree Celsius तो water सेपरेट ही हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई है तो गैस का डेंसिटी वैसे ही कम होगी। सो वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 277 केल्विन टेम्परेचर और 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो हम ये कह सकते हैं कि आइस की जो डेंसिटी है सॉलिड स्टेट में केस-लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से आइस हैज लो डेंसिटी देन वाटर। आइस की डेंसिटी लो है, सो आइस कैन इजीली फ्लोट ओवर द सरफेस
water. Is it clear? ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से क्लियर हो गए. Why ice float over the surface of water? Why ice has less density than water? और why water show maximum density only at temperature 277 Kelvin or 4 degree Celsius temperature. Next is physical properties of water. फिजिकल प्रॉपर्टी में मेन प्रॉपर्टी यही आ जाएगी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वाटर हैज मैक्सिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Water act like a universal solvent. Now, why water act like universal solvent? Because of its high dielectric constant. And polar character. And tendency to form hydrogen bond. ठीक है. वाटर दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है. तो ये दूसरे सॉल्यूट्स को लाइक अमोनिया, अल्कोहल. अल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसका कैरेक्टर नॉन पोलर कैरेक्टर का है. तो नॉन पोलर भी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है बिकॉज अल्कोहल हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. तो ionic compounds को ionic solute like NaCl, KCl etc. they dissolve in water because of dipole-dipole interactions, and some covalent compound dissolved in water like ammonia, alcohol etc. because of their formation of hydrogen bonding with water. ठीक है. So because of this property water maximum solute को dissolve करने की tendency रखता है. That's why water act like a universal solvent. Next is physical properties of water. So the chemical properties of water. The first, water is very stable molecule. वाटर की फॉर्मेशन के टाइम पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी. जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है दैट मीन्स कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल है. तो वाटर की स्टेबिलिटी हाई होने की वजह से वाटर इजीली डिकम्पोजिशन शो नहीं करेगा. इट कैन डिकम्पोज ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर लाइक अराउंड 1500 केल्विन और अंडर इलेक्ट्रिकल करंट. या तो इलेक्ट्रिकल करंट की प्रेजेंस में गेट डिकम्पोज्ड into its corresponding hydrogen and oxygen gas or at very high temperature around 1500 Kelvin or even at 1500 Kelvin temperature भी around 2% water ही decomposition show करेगा. So we can say that water is very stable molecule. Second, amphoteric character. Amphoteric character means water act like a acid as well as base. अब अगर हम इसको एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एसिड के साथ वाटर बेस की तरह बिहेव करेगा एंड विद बेसिस वाटर एक्ट लाइक अ एसिड. नाउ विद एसिड लाइक HCl, जब वाटर एक्ट करेगा देन एसिड हैव टेंडेंसी टू रिलीज देयर H पॉजिटिव आयन टू वाटर. And with base, like NH3, with base water अपना H positive ion base को
डोनेट कर देगा इन कन्वर्टेड इनटू NH4 पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में देखिए वाटर इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन बाय द गेन ऑफ H पॉजिटिव आयन। यहाँ पे वाटर ने H पॉजिटिव आयन का गेन किया, सो हियर वाटर एक्ट लाइक बेस एंड इन सेकंड इक्वेशन water donates its H positive ion to ammonia, so here water behave like acid। ठीक है, आपने अभी तक एक arrhenius acid and base का कंसेप्ट किया है। arrhenius acids which have tendency to dissociate into H positive ion when dissolved in water and arrhenius base which have tendency to dissociate into OH negative ion when dissolved in water। but in this case यहाँ पे दोनों रिएक्शन में H positive का ही ट्रांसफर हुआ। फर्स्ट में H पॉजिटिव का गेन हुआ और सेकंड रिएक्शन में वाटर ने H पॉजिटिव का लॉस किया। एंड H पॉजिटिव आयन मींस प्रोटॉन, सो प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड प्रोटॉन डोनर दे आर ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस। फर्स्ट कंसेप्ट का आर्हेनियस, सेकंड कंसेप्ट एसिड बेस का ब्रोंस्टेड एसिड्स एंड बेस। ब्रोंस्टेड एसिड्स आर H पॉजिटिव आयन डोनर एंड ब्रोंस्टेड बेसिस आर proton acceptor। So in first equation we can say that water accept H positive ion, so it acts like a Bronsted base, and in second equation water release H positive ion to ammonia, so it acts like a Bronsted acid। Is it clear? Now the third important reaction is redox reaction। Redox reaction very important, in which water behave like oxidizing agent as well as reducing agent। Now when water behave like oxidizing agent, then it undergo oxidation। अब ऑक्सीडेशन में क्या करेगा, वाटर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अगर वाटर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके साथ में कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए विच हैव टेंडेंसी टू गेन दैट इलेक्ट्रॉन, मींस विच हैव टेंडेंसी टू गेटिंग रिड्यूस्ड। और रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी किसकी होती है, नॉन मेटल्स की। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटल्स, so in reaction of water with non-metal, water act like a reducing agent। for example when fluorine react with water, then in this case fluorine take electron from water and itself converted into HF and water converted into O2। so in this equation वाटर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 to 0 इंक्रीज हुआ। सो इन दिस रिएक्शन वाटर अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो ये वाटर एक्ट लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। एंड व्हेन वाटर बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन वाटर अंडरगो रिडक्शन। रिडक्शन कब होगा, व्हेन वाटर gain electron from the another element, or element which have tendency to lose electron, they are generally metal। so reaction of metal with water, here water behave like oxidizing agent। ठीक है, और इस टाइप की रिएक्शन में when metal react with water, then metal hydroxide plus hydrogen gas is produced। तो यहाँ से देखिए वाटर में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन चेंजेस फ्रॉम 0 to +1 to 0। वाटर में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 to +1 इंक्रीज हुई। ठीक है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मेटल अंडरगो ऑक्सीडेशन, सो हियर वाटर एक्ट लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दीस रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है ये? नेक्स्ट इज ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। Autoprotolysis means self ionization of water।
water, another water की presence में ही self ionize होके हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा and this self ionization of water is named as autoprotolysis of water. ठीक है, autoprotolysis एसिड और बेस की प्रॉपर्टी है when water is converted into H3O positive ion, मतलब water ने प्रोटॉन का एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स behave like base and when water is converted into OH negative ion, here water donate proton, here water act like Bronsted acid. Clear है ये? Next is hydrolytic reactions. Now water have tendency to hydrolyze many compounds like metal oxides, metal nitrides, metal carbides etc. हाइड्रोलिटिक रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा, जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है वाटर में, दे रिएक्ट विद कैटायन एंड एनायन ऑफ द अनदर कंपाउंड एंड कन्वर्टेड इनटू देयर कोरस्पॉन्डिंग एसिड एंड बेस. फॉर एग्जांपल, व्हेन मेटल कार्बाइड्स लाइक कैल्शियम कार्बाइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर, तो यहाँ से देखिए कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज, कार्बन नॉन मेटल है, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव एंड water presenting H positive and OH negative form. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कैल्शियम आयन OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके मीथेन में कन्वर्ट हो जाएंगे. All the metal carbide when react with water then they form metal hydroxide plus methane gas. Metal nitrides like magnesium nitride when react with water, again they form magnesium hydroxide, that metal hydroxide. और यहाँ पे नाइट्रोजन है, now नाइट्रोजन react with H positive ion and produce ammonia gas. And metal hydroxides are basic by nature. तो यहाँ पे जो H positive और OH negative ion की interaction हुई with the cation and anion of metal carbide and metal nitride, then they produced their corresponding hydroxide means वो base में convert हुआ. Simple metal oxide like sodium oxide when react with water, metal oxide plus water, metal hydroxide बनाएंगे. Metal plus water, metal hydroxide plus hydrogen gas is liberated. Metal oxides are always basic in nature because on reacting with water, they are converted into their corresponding base, which are tendency to further dissociate into OH negative ion. And non-metal oxides like carbon dioxide, they are acidic by nature because on reaction with water, they are converted into their corresponding acid, which further have tendency to dissociate into H positive ion. ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक बाय नेचर एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक बाय नेचर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज हाइड्रेट फॉर्मेशन. नाउ मेनी कंपाउंड्स आर टेंडेंसी टू फॉर्म क्रिस्टल्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ठीक है, काफी कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो वाटर कुछ एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट करके क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे एंड दैट इज देयर हाइड्रेटेड फॉर्म. फॉर एग्जांपल, कॉपर सल्फेट कंटेन 5 वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल मेटल के साथ लिंक्ड होंगे इन दैट क्रिस्टलाइन फॉर्म, दैट इज नेम्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. लाइक इन कॉपर सल्फेट 5 वाटर क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट. बेरियम क्लोराइड कंटेन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. Hydrated ferrous sulfate contains 7 water of crystallization. Is it clear? And on the basis of bonding, these hydrates are further subdivided into 3 categories, like coordinated hydrate, hydrogen bonded hydrate, and interstitial hydrate. Coordinated hydrate में जो water molecule है वो central element के साथ coordinate bond बनाएगा, और इस केस में जो सेंट्रल एलिमेंट है वो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट का ही होगा. लाइक Fe H2O6 2 positive. We know that
iron has maximum number of vacant d orbital and in case of water oxygen contain extra lone pair. तो जो when iron comes in contact with water then oxygen transfer its lone pair to the vacant d orbital of ferrous ion. ठीक है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर फेरस आयन को ट्रांसफर कर देगा वेकेंट डी ऑर्बिटल में. बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू वेकेंट डी ऑर्बिटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन Fe2 पॉजिटिव आयन एंड वाटर. और इस टाइप से जो हाइड्रेट फॉर्म आएगी दैट इज कोऑर्डिनेट हाइड्रेट. ठीक है, और इस टाइप के और यहाँ से मैक्सिमम जितने भी वेकेंट ऑर्बिटल है आयरन सारे वेकेंट ऑर्बिटल में वाटर से इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करके अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट्स लाइक इन केस ऑफ कॉपर सल्फेट में 4 वाटर मॉलिक्यूल तो कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में रहेंगे एंड 1 वाटर मॉलिक्यूल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सल्फेट आयन. इंटरस्टिशियल हाइड्रेट इंटरस्टिशियल में इंटरस्टिशियस बनेगी. जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती है वाटर ऑक्यूपाई द होल. जनरली इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ आयनिक क्रिस्टल. आयनिक क्रिस्टल्स में क्या होगा फ्री होल्स प्रेजेंट होंगे इन बिटवीन द क्रिस्टल लैटिस. तो जो वाटर है वाटर फ्री होल्स में ऑक्यूपाई हो जाएगा. तो उस टाइप में जो हाइड्रेट्स बनेंगे दे आर इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स. इज इट क्लियर? So this is water, its physical and chemical property. Now our next topic is heavy water. Now formula of heavy water is D2O. That is deuterium oxide. Heavy water is formed by the isotope of hydrogen. That is deuterium. ठीक है, deuterium के ऑक्साइड को बोलते हैं heavy water. Heavy water is prepared by the scientist and it is prepared by prolonged electrolysis of water. By prolonged electrolysis of water. Now we know that water in some traces also contain D2O. ठीक है, वाटर में कुछ ट्रेसेस में D2O प्रेजेंट होगा. तो जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे सो एज वाटर के साथ साथ ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी आयनाइज होगा. वाटर के कोरस्पॉन्डिंग H पॉजिटिव आयन, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के कोरस्पॉन्डिंग D पॉजिटिव आयन. नाउ वी नो दैट H पॉजिटिव आयन इज लाइटर एज कंपैरिजन टू ड्यूटेरियम आयन. तो H पॉजिटिव आयन पहले अपनी रिस्पेक्टिव कैथोड की तरफ मूव करेगा एंड कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस. ठीक है, वाटर की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे देन इट गेट डिकम्पोज्ड एंड प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस एट एनोड. वाटर की डिकम्पोजिशन होती जाएगी और ड्यूटेरियम ऑक्साइड हैवी होने की वजह से इट रिमेन इन द बीकर. तो जब हम प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब है, लंबे टाइम तक ये प्रोसेस चलेगी. ठीक है, जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस को बहुत लंबे टाइम तक करेंगे तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वाटर तो डिकम्पोज होता जा रहा है तो बीकर में कंसंट्रेशन D2O की इंक्रीज होगी. सो यहाँ से अराउंड 29,000 लीटर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से वी गेट 1 लीटर D2O एंड दैट इज 99.9% प्योर. ठीक है, तो हमें 29,000 वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करना पड़ेगा देन वी गेट 1 लीटर ऑफ हैवी वाटर. ठीक है, सो दिस इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम. दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. Now physical properties almost same है. वही tasteless, odorless, high melting point when liquid when water. ठीक है, और वाटर से हैवी होने की वजह से इसकी जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वाटर.
बायोलॉजिकली जो हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होंगी, अब वाटर तो रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करता है, बट हैवी वाटर रिएक्शन को स्लो करेगा. सो बायोलॉजिकली हैवी वाटर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टी. नाउ एज एटॉमिक नंबर ऑफ ड्यूटेरियम इज सिमिलर टू प्रोटॉन, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के आइसोटोप है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है. एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी टोटली सेम होगी. जस्ट डिफरेंस क्या होगा, एटॉमिक मास ड्यूटेरियम का हाई होने की वजह से जो रिएक्शन है इट बिकम हैवी, तो इसकी जो रिएक्शन है वो वाटर के कंपैरिजन में स्लो रिएक्शन देगा. ठीक है, प्रॉपर्टी सारी सेम देगा वाटर वाली, बट जो केमिकल प्रॉपर्टी वाटर फास्टली रिएक्ट करता है, बट ड्यूटेरियम ऑक्साइड की रिएक्शंस स्लो होगी. Stability like that of water, deuterium oxide is also stable, but under electrical current it get decomposed to give D2 and O2. ठीक है, ड्यूटेरियम डाइड्यूटेरियम कैथोड पे प्रोड्यूस्ड होगा एंड डाई ऑक्सीजन गैस इज liberated over एनोड. Second, now when metals react with deuterium oxide like that of water, इसके corresponding metal butyrate NaOD plus D2 is liberated. मेटल ऑक्साइड्स के साथ मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं. अब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड प्लस ड्यूटेरियम ऑक्साइड मेटल ड्यूटेरियो ऑक्साइड्स बनेंगे. NaOD मेटल कार्बाइड प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन गैस. अब यहाँ पे उसी के कोरस्पॉन्डिंग CaOD plus CD4. Now here instead of hydrogen we take deuterium, तो जस्ट रिएक्शन स्लो हो जाएगी, रिएक्शन प्रोसीड वही करेगी. Now with nitrides, nitride like magnesium nitride plus deuterium oxide. When we react metal nitride with water, then ammonia gas is produced. Now यहाँ पे deuterio nitrides are produced. NgOD2 plus NH3 के corresponding ND3 deuterio nitrides. ये है कार्बाइड्स के corresponding deuterio कार्बाइड, नाइट्राइड्स के corresponding deuterio नाइट्राइड, phosphines के corresponding deuterio phosphide. Is it clear? Reaction of heavy water and water are almost same. Just rate of reaction में different होगा. Water का rate generally fast होगा. Reaction with heavy waters are slow reactions. And like that of water, deuterium oxide also form hydride formation like copper sulfate penta deuterio oxide. When deuterio oxide react with another salt like copper chloride, like that of water, it also give डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी कॉपर OD2 प्लस BCl. ठीक है, बट रिएक्शन स्लो होंगी तो इसका बायोलॉजिकल हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है. बायोलॉजिकली हमारी जो बॉडी में केमिकल बायोलॉजिकल रिएक्शंस होंगी उसका रेट भी हैवी वाटर की प्रेजेंस में स्लो होगा. सो वी कैन से दैट बायोलॉजिकली हैवी वाटर इज इंजीरियस फॉर ह्यूमन बीइंग्स. Heavy water does not support life. Is it clear? So this is all about water and heavy water, their physical and chemical property. I hope you cleared all the reactions. Thank you and have a nice day.